Hello everyone. So this is my second lecture on the fermentation microbiology. In the first lecture we already discussed about the basics of the fermentation and the microorganism used in the fermentation microbiology and the role of microbes, why microbes are so much important and why we selected microbes for the fermentation of various kind of commercial and economical valuable products like antibiotics, alcohol, vaccine, single cell protein, lots of acids and many more such food and food products and the medicinal products. Okay, so in this class we are going to study about the basic design of fermenter, what exactly fermenter is made up of, and what are the important components of the fermenter. Okay, let's start with the fermenter. Very first, what exactly a fermenter is. So the fermenter is a uh, vesicle, or you can say a container that is used for the fermenter process. It is like a chamber like rectangular, generally it is in cylindrical form, and size depend upon the maybe used in the pilot plant it is small, in the laboratory it's again small, and when we use for the large scale production it is in the gallons, means thousands of liters big containing fermenters are used in the fermentation industries. Okay, so the container is basically a container that is used for the fermentation process. It contains the microbes as well as the raw material in the closed controlled condition for the production of important industrial products. So there are two types of fermenters. One is open and the other one is closed. The name indicates that in the open fermenter you can add in anything in between, or anything in the sense you can add the nutrient and whatever the parameters are required. But in the closed container, once you started the fermentation process you can't easily add the things and remove it. So first you can see the basic design or the very common design of the fermenter. So आप देख सकते हो there is a something cylindrical structure is there. Imagine in the 3D way. It is a totally round cylinder like structure in which we have some inlet or the shaft from the above, that is a additional addition port. Stirring shaft seal is there. Sterile exhaust gases, means from the stirrer shaft seal is something called a connected with a motor that is used for the mixing of the fermentation medium and microbes. Okay, मीन्स एक लॉन्ग रॉड शेप स्ट्रक्चर रहता है जिससे इम्पेलर्स जुड़े होते हैं जो न्यूट्रिएंट मीडिया के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली मिक्स करते हैं ताकि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रॉपर हो. सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट इज अ स्टराइल एग्जॉस्ट गैस, मीन्स आफ्टर फर्मेंटेशन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फर्मेंटेशन में गैसेस रिलीज होती हैं, तो जो गैसेस हैं वो स्टराइल एग्जॉस्ट गैस से बाहर निकलती हैं. ओके, नेक्स्ट है वाटर जैकेट. यू कैन सी ऑन द वेरी लेफ्ट साइड वाटर एंड द स्टीम इन. तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इट्स लाइक अ जैकेट. अगर कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और उसमें हीट जनरेट होती है तो ये जो वाटर और ये स्टीम जैकेट है, वाटर जैकेट से कोल्ड वाटर को क्या किया जाता है, सर्कुलेट करते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे. अगर टेम्परेचर राइज करना है तो स्टीम स्टीम पास करते हैं ताकि टेम्परेचर राइज हो. ओके, नेक्स्ट आप सेंटर में देख रहे हो शाफ्ट है, शाफ्ट से इम्पेलर लगे हुए हैं. इम्पेलर का काम है इस लाइक अ ब्लेड, बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती हैं जो मीडिया को और माइक्रोब्स को मिक्स करने का काम करती हैं. नेक्स्ट बैफल दिख रहा है, बैफल साइड से मिक्सिंग में हेल्प करते हैं. और नीचे आपको दिख रहा है एयर इनसाइड स्पार्जर. स्पार्जर लाइक छोटे छोटे छेद होते हैं. स्पार्जर मतलब छोटे छोटे छेद वाली पाइप जिससे स्टराइल एयर पास होती है. अज्यूम करो कि ये प्रोसेस एरोबिक फर्मेंटेशन की है जिसमें आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूसली स्टराइल एयर प्रोवाइड करना है फॉर द एरोबिक ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल सेल. तो इस केस में हम यहाँ से स्पार्जर से स्टराइल एयर पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और बैफल्स और इम्पेलर की हेल्प से ये एयर थ्रू आउट द फर्मेंटेशन मीडिया क्या होती है, मिक्स होती है. एकदम नीचे आपको दिख रहा है हार्वेस्ट पोर्ट. हार्वेस्ट मतलब कटाई करना या निकालना. तो जो भी आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होगा वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर फर्मेंटेशन प्रोसेस आप हार्वेस्ट पोर्ट से उस फर्मेंटेशन प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस. वी विल सी इन डिटेल इन द फर्दर यूनिट्स. तो हार्वेस्ट पोर्ट से आप उस जो भी आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, इट कुड बी एनीथिंग,
उसको आप निकालते हो, उससे माइक्रोबियल सेल सेपरेट करते हो और आपका जो प्रोडक्ट है उसको प्यूरिफाई करते हो और पैकेज करते हो. नाउ दैट इज अ वेरी बेसिक डायग्राम अबाउट द फर्मेंटर. नाउ यू कैन सी द ओपन एंड द क्लोज फर्मेंटर. यू कैन सी द टू डायग्राम. वन इज ओपन एंड वन इज क्लोज. ओपन में आपको दिख रहा है कि देयर आर लॉट्स ऑफ इनलेट्स आर देयर लाइक फ्रेश मीडिया फीड, exit gas flow, acid base, एंटी फॉर्मिंग एजेंट, इनलेट एयर फ्लो आर यू कैन सी इजिली. और साइड में आपको दिख रहा है एग्जिट लिक्विड फ्लो. ये भी सेम बेसिक डिज़ाइन है जिससे आप ऊपर से फ्रेश मीडिया फीड, मतलब ये ओपन सिस्टम में आप बीच बीच में फर्मेंटर में न्यूट्रिएंट मीडिया डाल सकते हो और साइड से जो एग्जिट फ्लो दिख रहा है वहाँ से आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल सकते हो. उसके साथ साथ एग्जिट गैस फ्लो, मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो मतलब गैस रिलीज होगी तो गैस आप एग्जिट गैस फ्लो से बाहर निकालोगे. फिर एंटी फॉर्मिंग एजेंट. एंटी फॉर्मिंग एजेंट वो होता है जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस हम करते हैं तो जो शाफ्ट घूमता है तो उसके कारण वहाँ बबल्स और फोम क्रिएट होता है. तो ये जो फोम है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं बाय एडिंग द एंटी फॉर्मिंग एजेंट. फिर एसिड बेस का आपको इनलेट दिख रहा है. दिस एसिड बेस इनलेट, ये जो एसिड बेस का इनलेट दिख रहा है, ये एसिड बेस इनलेट से आप पीएच रेगुलेट करते हो फर्मेंटेशन मीडिया का. फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को आपको पीएच की रेंज में ग्रो करना है तो आप क्या करते हो, एसिडिक बनाने के लिए आप HCl ऐड कर सकते हो या H2SO4 ऐड कर सकते हो. अगर आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म अल्कलाइन पीएच प्रेफर करता है तो आप एसिड बेस इनलेट से NaOH या QH ऐड करोगे. ओके, देन नेक्स्ट यू कैन सी द देयर सेंसर आर देयर, लेवल सेंसर, जहाँ आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म उसके ऊपर गया तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट ऐड हो जाता है. पीएच सेंसर है, पीएच रेगुलेट होता रहता है इन बिटवीन कि पीएच जो भी आपका रिक्वायर्ड पीएच है उससे पीएच आगे नहीं बढ़ना चाहिए. उसके बाद है आपका थर्मोकपल दिख रहा है आपको यहाँ पे रेड छोटा सा, आई विल लेट यू नो. ये जो थर्मोकपल है, थर्मोकपल आपको शो करता है कि यहाँ से टेम्परेचर रेगुलेट होता है, प्लस अगर एक्सट्रीम हो गया टेम्परेचर तो आप वाटर जैकेट से कोल्ड वाटर सर्कुलेट करोगे, अगर कम हो गया तो आप हॉट वाटर सर्कुलेट करोगे जिससे टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा. ओके, नाउ दैट्स बेसिक अबाउट द इनलेट एंड आउटलेट्स ऑफ द फर्मेंटर. दैट इज अबाउट द ओपन वन and this is one is about the closed fermenter. Here you can see the fermenter lid is closed, totally closed, so you can't add in between the things as per your requirement. Here once you started your fermenter, it's generally used in the batch fermenter. यानी एक बार मीडिया जो भी रॉ मटेरियल है वो ऐड कर दिया फर्मेंटर में, उसको स्टराइल कर दिया, आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आपने उसमें डाल दिया, आपका पीएच जो भी रिक्वायरमेंट्स है बेसिक रिक्वायरमेंट आपने डाल दी और उसके बाद एक बार फर्मेंटर स्टार्ट हो जाता है. उसको बोलते हैं क्लोज फर्मेंटर. इसमें जनरली हम चीज़ों को इन बिटवीन डालते नहीं हैं, मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया आप फ्रेशली ऐड नहीं कर सकते हो, बट इन बिटवीन आप अपना आपका फर्मेंटर किस स्टेज पे पहुंचा है, मतलब फर्मेंटेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कि नहीं, इसके लिए आप चेकिंग कर सकते हो. बट आप इसमें बीच में कुछ डालना या निकालने वाली जो प्रोसेस जो ओपन फर्मेंटर में पॉसिबल थी क्लोज फर्मेंटर में पॉसिबल नहीं है. यहाँ भी बेसिक वही चीज़ें हैं, बीच में मोटर है, शाफ्ट से इम्पेलर जुड़ा हुआ है, इम्पेलर का काम, मोटर घूमती है राउंड राउंड, इम्पेलर मिक्सिंग का काम करते हैं जैसे कि हम दाल घोटते हैं, सेम थिंग लाइक दैट. फिर उसके बाद आप देखोगे स्टीम है, न्यूट्रिएंट इनोकुलेंट है जहाँ से आप न्यूट्रिएंट डालते हो. इसके बाद ये जो फर्मेंटर है इसमें एक बार फर्मेंटेशन मीडिया डालने से पहले आपको पूरा फर्मेंटर स्टराइल करना पड़ता है, तो वो स्टीम से स्टराइल करते हैं उसको. उसके बाद एक बार आपने न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, इनोकुलेंट डाल दिया. इनोकुलेंट का मतलब होता है जो भी आपका स्ट्रेन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज़ कर रहे हो फर्मेंटेशन के लिए वो डाल देते हो आप. उसके बाद एसिड बेस सेम एज पीएच मेंटेन करने के लिए एसिड बेस इनलेट है, आपको दिख रहा होगा. फिर वाटर जैकेट दिख रही है आजू बाजू जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बनी होती है. पीएच प्रोब दिख रहा है जो पीएच को रेगुलेट करता, मतलब मॉनिटर करता है कि पीएच बढ़ा है या कम हुआ है. टेम्परेचर प्रोब दिख रहा है जो ये बताता है कि टेम्परेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हॉट वाटर या कोल्ड वाटर पास करते हैं. उसके बाद है आपका नीचे दिख रहा है क्लियर, हार्वेस्ट पाइप दिख रहा है, स्टीम दिख रहा है. हार्वेस्ट पाइप से आपका जो भी आफ्टर फर्मेंटेशन प्रोसेस आप अपना जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल सकते हैं. और कंप्रेस्ड एयर दिख रही है, सेम थिंग, अगर एरोबिक प्रोसेस होती है तो आप इस कंप्रेस्ड एयर पाइपलाइन से स्टराइल
ऑब्वियसली स्टेराइल एयर को आप पास करोगे फॉर द प्रॉपर एरोबिक फर्मेंटेशन, और एनारोबिक रहेगा तो नो नीड टू ऐड द compressed गैस फ्रॉम द स्पार्जर. दिस इज द कंप्लीट डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर अकॉर्डिंग टू योर फर्मेंटेशन. इट मे बी एरोबिक एनारोबिक, कुछ कुछ चीज़ें हमारी चेंज होते रहती हैं और डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट आपको कौन सा प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन करना है उसके अकॉर्डिंग आप क्लोज्ड या ओपन फर्मेंटर को सिलेक्ट करते हो. आई होप यू गॉट understand the basic idea of your fermenter. It's very simple. Now let's see one by one in detail. So first, what are the three major criteria for designing the fermenter? The very first is vessel. जो वेसल आप लेते हो, जो सिलेंडर या कंटेनर आप ले रहे हो फर्मेंटेशन के लिए, उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़. सेकंड, एरेशन एंड एजिटेशन. जो मैंने अभी बताया कि यार एरोबिक फर्मेंटेशन है तो आपको एयर का सप्लाई करना है, स्टेराइल एयर का सप्लाई करना है, नहीं है तो आपको नहीं करना है. एजिटेशन, मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट है क्या आप फर्मेंटेशन में, क्योंकि एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगते हैं तो मे बी सरफेस पे ज़्यादा ग्रो हो जाए या लोअर में ज़्यादा ग्रो हो जाए. थ्रू आउट द फर्मेंटिंग मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर सर्कुलेट नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो कम सिंथेसाइज होगा. सो एजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजिटेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ योर न्यूट्रिएंट मीडिया. तो एजिटेशन का काम कौन करता है, इम्पेलर करते हैं. और बैफल्स का काम क्या है, एरेशन, मिक्सिंग करता है, बाजू से वो मीडिया को मिक्स करता है जिससे एयर प्रॉपरली मीडिया में सर्कुलेट होती है, जिससे माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रॉपर होती है और आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट भी हाई अमाउंट में बनता है. नेक्स्ट है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्रोब्स. लाइक अभी मैंने डिस्कस किया, आपको थ्रू आउट द प्रोसेस ये देखना है कि आपका टेम्परेचर कितना पहुंचा है मीडिया का, आपका डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट वैरी करेगा आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ को, और उसके कारण अगर माइक्रोबियल ग्रोथ कम या ज़्यादा होगी तो आपका फर्मेंटर जो प्रोडक्ट होगा वो वैरी करेगा. मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है आपका इकोनॉमिकल लॉस. अगर फर्मेंटेशन कैसा हो रहा है, आपको इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है या आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा है, इसलिए सारे मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जितना ये आपके जो कंट्रोल मॉनिटरिंग प्रोब्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे तो आपका प्रोसेस उतनी इकोनॉमिकल होगी. पीएच बहुत मैटर करता है, क्योंकि पीएच बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है या इनएक्टिवेट करता है. तो पीएच अगर सही रहा तो आपका एंजाइम प्रॉपरली काम करेगा और आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस फास्ट होगी. और पीएच अगर कम या ज़्यादा रहा तो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी या इनहिबिट होगी, स्लो होगी. नेक्स्ट है प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रेगुलेट करता है. उसके बाद है फोम. बेटा अभी मैंने डिस्कस किया कि जब आप न्यूट्रिएंट जो मीडिया लेते हो या रॉ मटेरियल जो आप सिलेक्ट करते हो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, तो वो जो अगर वो प्रोटीनियस न्यूट्रिएंट मीडिया रहा तो जब आप हम एजिटेशन या एरेशन करते हैं तो वो जो प्रोटीनियस मटेरियल फोम क्रिएट करता है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस में भी फोम क्रिएट होती है. बिकॉज ऑफ दैट वो जो लीड होता है फर्मेंटर का वहाँ तक वो फोम पहुँच जाती है, उसके कारण आपका कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो बीच बीच में हमको एंटी फोमिंग एजेंट डालना पड़ता है जो फोम को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे और हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस प्रॉपर चले. तो बेसिक क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया. वेसल का मटेरियल, एरेशन एंड एजिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंट्रोलिंग प्रोब्स और मॉनिटरिंग प्रोब्स लाइक टेम्परेचर, डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है, पीएच क्या है मीडिया का, प्रेशर कितना है और फोम फॉर्मेशन कैसा है. इन सारे 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हमको फर्मेंटर की डिज़ाइन बनानी है. दिस द डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन. if you ask the question for 10 marks, give the proper diagram of fermenter or explain the structure of fermenter, then you have to draw not this much detailed diagram, but still you have to draw a better diagram for getting proper marks, I say. So this is something what I explained earlier here, that is in the colorful form, nothing else. You can see the monitor with the motor with the shaft having the impeller. That function is it's like something 3D image is there. तो मोटर कनेक्टेड है इम्पेलर के साथ जो मिक्सिंग का काम कर रहा है. कल्चर ब्रॉथ है जो ब्राउन कलर की दिख रही है आपको. कूलिंग जैकेट साइड में दिया हुआ है. कूलिंग वाटर आउटलेट और इनलेट दिया हुआ है, मतलब फर्मेंटर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक साइड से आप कूलिंग वाटर डालो, दूसरी साइड से आप वाटर को निकाल लो. नीचे से स्पार्जर दिया हुआ है जिसमें छेद लगे हैं, बबल्स दिख रहे हैं आपको, एरेशन हो रहा है.
ऊपर से दिख रहे हैं आपको 2-3 इनलेट दिख रहे हैं पीएच कंट्रोल करने के लिए, एसिड बेस के ऐड करने के लिए। स्टीम दिख रही है, स्टीम का यूज़ होता है जब आपका फर्मेंटर कभी कभी हम यूज़ करते हैं कि खाली फर्मेंटर को हम स्टरलाइज कर देते हैं। अगर वो नहीं किया तो मीडिया भर के भी स्टरलाइज करते हैं। तो जो स्टीम है, लाइक ऑटोक्लेव में हम जैसे स्टरलाइजेशन करते हैं, सेम हियर स्टीम को पास करते हैं और ये फर्मेंटर का क्या होता है, या मीडिया विथ फर्मेंटर का स्टरलाइजेशन होता है, ताकि जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो वो प्रोडक्ट क्या ना हो, कंटेमिनेटेड ना हो, या माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो this is about the basic diagram of the fermenter. Very basic, you have to mention the motor, impeller, shaft, baffle, नीचे वाला स्पार्जर, आउटलेट पाइप, स्टीम वॉल्व्स, पीएच एसिड बेस एडिशन, फिर मॉनिटर से आपको ऐड करने हैं, टेम्परेचर का प्रोब ऐड करना है, पीएच का प्रोब ऐड करना है, जैकेट दिखाना है, कूलिंग जैकेट, और उसके बाद ऊपर से स्टीम। 4 से 5 चीज़ें आपको मेंशन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना 3D डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। इफ़ यू ड्रॉ दिस डायग्राम इट्स ऑल्सो वर्क, दिस डायग्राम इज ऑल्सो वर्क फॉर योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी इन डिटेल what exactly the very first criteria is what the material used in the construction of the fermenter. तो फर्मेंटर ऑब्वियसली अगर मैं आपको बेसिकली भी पूछूं कि फर्मेंटर के मटेरियल कैसा होना चाहिए, मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिससे माइक्रोऑर्गेनिज्म का कोरोजन ना हो, और जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट मीडिया उसमें डालें या फर्मेंटर का रॉ मटेरियल डालें फर्मेंटेशन प्रोसेस का, तो वो रॉ मटेरियल जो भी कंस्ट्रक्शन में मटेरियल हमने यूज़ किया है फर्मेंटर के, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, कोरोजिव नहीं होना चाहिए। तो फर्मेंटर विल बी डिफर फ्रॉम द साइज। मैंने जैसे बताया कि 2-3 चीज़ें होती हैं, स्केल, पायलट एंड लार्ज। तो स्मॉल स्केल फर्मेंटर जनरली हम लैब वगैरह में बनाते हैं। पायलट एक प्लानिंग, जिससे हमको बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, उसके पहले हम पायलट प्लान बनाते हैं, तो वो फर्मेंटर छोटा होता है लैब के साइज़ के अकॉर्डिंग। एक लार्ज स्केल होता है जिसमें हम फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जनरली कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, वी यूज़ स्टेनलेस स्टील, सबको पता है स्टील जो हम घर में यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील। फॉर स्मॉल स्केल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है स्टेनलेस स्टील विद द 4% क्रोमियम। अगर स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम है तो उसको बोलते हैं माइल्ड स्टील दैट कोटेड विद ग्लास और इपॉक्सी मटेरियल्स, ग्लास मटेरियल से बना हुआ रहता है। वुड और प्लास्टिक और कंक्रीट से भी बने हुए पायलट प्लांट के लिए बड़े बड़े फर्मेंटर्स यूज़ होते हैं, मतलब लकड़ी का, सीमेंट का, फिर आपका स्टेनलेस स्टील का, मिक्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्रोमियम और अदर मटेरियल्स। इस तरीके के हम डिफरेंट फर्मेंटर्स यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू, स्पेसिफाई करो, अकॉर्डिंग टू वॉट एवर द प्रोडक्ट वी वांट टू प्रोड्यूस, उसके अकॉर्डिंग फर्मेंटर की डिज़ाइन सेलेक्ट होती है। तो मैंने अभी बताया आपको मटेरियल यूज इन फर्मेंटर, आयरन, ससेप्टिबल टू कोरोजन। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आयरन यूज़ करते हो तो वो प्योर नहीं होना चाहिए, उसके साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो आयरन के साथ 12.5% क्रोमियम ऐड करते हैं ताकि उसका कोरोजन ना हो। क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन, क्रोमाइड ऑक्साइड भी ऐड करते हैं उसकी लेयरिंग करने के लिए, और स्टेनलेस स्टील के फर्मेंटर ऐड करते हैं। इतना डिटेलिंग आपको नहीं जाना है। फर्मेंटर हैव मैकेनिकली मूविंग द एजिटेटर और इम्पेलर विद इन द बैफल्ड सिलेंड्रिकल वेसल्स। तो जो फर्मेंटर बनता है उसमें मैकेनिकली मतलब मोटर से लगा हुआ एजिटेटर होता है और इम्पेलर होता है। अभी मैंने बताया मोटर से जो मिक्सिंग का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एजिटेटर और इम्पेलर। नेक्स्ट है बैफल, जो आपको अराउंड द साइड ऑफ द फर्मेंटर दिखा था। Let me see you. You can see here. This is baffle. This is baffle. Okay. तो वो होता है यूज गैस को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए। सो baffles are usually flat vertical plates whose width is 1/10 of the vessel's diameter, and एक 1/10 होता है साइज का। अगर 10 गुना है तो उसका 1 गुना बैफल की साइज होती है। 4 to 6 बैफल लगे होते हैं फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द एयर एंड द मटेरियल विद द माइक्रोब्स। नाउ कम विद द एजिटेशन और एजिटेटर। एजिटेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, और एजिटेटर का यूज़ करते हैं हम इम्पेलर से यूज़ करके हम एजिटेशन या मिक्सिंग का काम करते हैं। तो इट रिक्वायर्ड अचीव नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या है एजिटेटर यूज़ करने का पर्पज़? पहली बात ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होनी चाहिए, हीट ट्रांसफ़र होनी चाहिए,
जो भी सॉलिड मटेरियल लम्प्स अगर बन गए होंगे बाय चांस हाँ आपके रॉ मटेरियल के अंदर या फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर, तो वो सस्पेंशन या उसको सॉलिडिफाइड करने का काम भी कौन करता है, एजिटेटर या इम्पेलर करता है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर, क्योंकि अगर मीडिया एक जगह रहा और मिक्स नहीं हुआ तो कहीं टेम्परेचर ज़्यादा कहीं टेम्परेचर कम हो सकता है, कहीं माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज़्यादा या कम हो सकती है, इसलिए प्रॉपर मिक्सिंग भी ज़रूरी है। उसके बाद ये आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ABC 3 डायग्राम दी हुई है। ये टाइप्स ऑफ इम्पेलर है जो फर्मेंटेशन में यूज़ होते हैं। अलग अलग फर्मेंटर्स के साथ अलग अलग ये होते हैं, इम्पेलर्स होते हैं, एजिटेटर। और आप देखते हो उसमें ब्लेड्स लगी हुई, ब्लेड्स प्रॉपर मिक्सिंग का काम करती है। नाउ the sterile air. The sterile air required for the fermentation process are passed through the sparger. Hope you remember where it is. Sparger, it is here. This portion is the sparger that is connected with the sterile air. Okay, so sparger is the instrument, or you can say part of the fermenter that is provided for the supply of sterile air if the process is aerobic fermentation. So sample addition port and the sterile gas exhaust are present on the top region of the fermenter. यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से एग्जॉस्ट अवेलेबल है, जहाँ से फिल्टर एग्जॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जिससे जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के टाइम जो गैसेस रिलीज होती है वो वहाँ से निकाली जाती हैं। उसके बाद है वाटर स्ट्रीम और वाटर स्ट्रीम आउट। ये ऑलरेडी मैंने सब कुछ डिटेल आपको दे दिया है पहले ही। यहाँ से कूलिंग वाटर अंदर जा रहा है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, और यहाँ से कूलिंग वाटर बाहर निकल रहा है। उसके बाद है हार्वेस्ट पोर्ट दिया हुआ है। पोर्ट मतलब पाइप समझ लीजिए आप। हार्वेस्ट पोर्ट का काम है कंप्लीशन, जब आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये वॉल को खोलते हैं। वॉल यानी इट्स लाइक अ बटन, वॉल को खोलते हैं और वहाँ से फिर आपका डिपेंड करता है कि आपका फर्मेंटेशन किस टाइप का है, 2 दिन का है, 4 दिन का है, 5 दिन का है, उसके अकॉर्डिंग हार्वेस्ट पाइप से आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फर्मेंटेशन हार्वेस्ट पाइप से आप आपका फर्मेंटेड ब्रॉथ बाहर निकालते हैं और उसके बाद फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के लिए उसको भेजते हैं। नाउ दैट इज अबाउट द बेसिक instrumentation of the fermentation. Now the factor affecting the fermenter design, that is an important thing. Hold on. So there are some factors. These are about the different parts of fermenter. We already discussed which part have which kind of function, what is important of that. Now we see the which kind of factor that affect the fermenter process. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आई सेड द सिलेक्शन ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन। जब भी आप कोई फर्मेंटेशन प्लान करते हो या किसी प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन प्लान करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है आपका माइक्रोबियल स्ट्रेन, नॉट स्टेन। स्टेन मतलब कलर, स्ट्रेन मतलब टाइप, कौन सी स्पेसीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आप यूज़ कर रहे हो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। तो सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेन ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके पर डिपेंड करेगा कि आपका फर्मेंटेड प्रोसेस कितना इकोनॉमिकल होगा। स्ट्रेन डिसाइड करती है कि आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट कैसा होगा और कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो आपकी जो स्ट्रेन आपने सिलेक्ट की है माइक्रोबियल स्ट्रेन, वो आपकी जो भी फर्मेंटिंग मटेरियल, फर्मेंटर का जो कंस्ट्रक्टर मटेरियल है, लाइक जो भी आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहे हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, कॉन्क्रीट, वॉट एवर इट मे बी, उसके साथ आपका स्ट्रेन रिएक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म केमिकल्स के साथ, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कुछ कुछ माइक्रोस इवन कॉन्क्रीट को भी रिएक्ट करते हैं। कॉन्क्रीट घरों की दीवारें खराब होती हैं, उसके पीछे भी बैक्टीरिया एक रीज़न है मेजर। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि कॉन्क्रीट को माइक्रोऑर्गेनिज्म खराब नहीं करते। इवन माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉन्क्रीट को खराब करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को खराब करते हैं, आयरन को खराब करते हैं, वुड के साथ इंटरेक्ट होते हैं, फंगस है वहाँ पे जो वुड को खराब करती है। देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रोब्स दैट इंटरेक्टेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स एंड मटेरियल्स. So next is the selection of pH. The important one is one of the most important factor is pH. जनरली फिजियोलॉजिकल pH जो हम बात करते हैं, ऑल द माइक्रोब्स आर ग्रो वेरी वेल एट 5.5 to 8.5 pH. ठीक है, होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट. pH 5.5 से 8.5 के बीच में pH मेंटेन रखते हैं। और इफ जब आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड के मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण पीएच वैरी करती है।
तो उस पीएच को पीएच प्रोब या पीएच मॉनिटर से चेक करते रहना पड़ता है बीच बीच में। और अकॉर्डिंग टू अगर पीएच सपोज पीएच 5.5 से बढ़ गया, मतलब टुवर्ड अल्कालाइन गया, तो आप क्या ऐड करोगे, एसिड ऐड करोगे उसको 5.5 की तरफ लाने के लिए। अगर पीएच 8.5 आपको अल्कलाइन पीएच चाहिए और एसिड प्रोड्यूस होने के कारण पीएच कम हो रहा है, तो आप अल्कली ऐड करोगे लाइक NaOH और KOH टू मेंटेन योर पीएच। सो योर फर्मेंटेशन प्रोसेस विल नॉट बी हर्डल और माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रॉपर हो और आपका जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस हो वो इकोनॉमिकल हो। तो फॉर मेंटेनिंग द एसिडिक पीएच यू ऐड HCl, फॉर मेंटेनिंग द बेसिक pH you will add alkali base like NaOH. That is the two factor that affecting the fermentation design. Third factor and again the important one is the temperature. Everyone know कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ टेम्परेचर को कितना वैरी करती है। हम फ्रिज में चीज़ों को रखते हैं क्योंकि वहाँ माइक्रोब्स की ग्रोथ स्लो होती है, कुछ माइक्रोब्स की ग्रोथ लो टेम्परेचर पे फास्ट होती है, कुछ की स्लो डाउन हो जाती है, कुछ की मीडियम मिजोफिलिक होते हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं। तो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर माइक्रोऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन को, ये कैन से मल्टीप्लाई होने की स्पीड को बहुत वैरी करते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल इज इसेंशियल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। लोअरिंग द टेम्परेचर कॉज अ रिड्यूस इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो अगर टेम्परेचर कम हो गया तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो जाएगा। मे बी प्रोडक्ट अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली माइक्रोबियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो भी आपका फर्मेंटेशन प्रोडक्ट स्लो डाउन हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो हम कूलिंग चेम्बर से हॉट या कूल वाटर को पास करते जिससे टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। डिजोल्व ऑक्सीजन नेक्स्ट इज ऑब्वियसली एरोबिक फर्मेंटेशन हो या एनारोबिक हो, डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत वेरी करेगा। एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि अल्कोहल का प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो अल्कोहल प्रोडक्शन इज ए कम्प्लीटली एनारोबिक प्रोसेस। तो अगर आप वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हो तो अल्कोहल कम प्रोड्यूस होगी, बैक्टीरिया ईस्ट सेल ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अल्कोहल में इंटरेस्टेड नहीं हो। अब अगर आप ईस्ट सेल प्रोड्यूस कर रहे हो, ईस्ट सेल प्रोड्यूस करने के लिए आप चाहोगे कि वहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्शन कम हो ताकि ईस्ट सेल ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दोगे स्पार्जर के थ्रू, बबलिंग के थ्रू। स्पार्जर से आप स्टेराइल एयर पास करोगे जिससे डिजोल्व ऑक्सीजन फर्मेंटर में मिक्स हो ताकि माइक्रोबियल सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो, सिंगल सेल प्रोटीन की सेल्स की ग्रोथ आपको ज़्यादा मिले। अगर वहीं आप इंटरेस्टेड हो कि आपको प्रोडक्ट चाहिए, एनारोबिक प्रोडक्ट चाहिए, तो आप डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम कर दोगे। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज एन न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे तो ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, इट्स नॉट हैपन लाइक दैट। द न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन इन द बायोरिएक्टर शुड बी लिमिटेड। लिमिटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज एडवांटेजेस फॉर द ऑप्टिमल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यानी जितना चाहिए उससे हमेशा थोड़ा सा न्यूट्रिएंट मीडिया को कम ही रखना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट जिससे माइक्रोबियल सेल की ग्रोथ प्रॉपर होती है। अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया डालोगे कॉन्सेंट्रेशन तो वो माइक्रोबियल सेल की ग्रोथ को हर्डल करता है, मीन्स वो इनहिबिटरी प्रोडक्ट बन जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है एडिक्वेट मिक्सिंग एंड एजिटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया अभी हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया है कि मिक्सिंग या एजिटेशन का क्या इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मिक्सिंग आपको क्या प्रोवाइड करती है, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल विद न्यूट्रिएंट मीडिया या जो रॉ मटेरियल आपने लिया है, ताकि पूरा रॉ मटेरियल आपके बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। उसके बाद एजिटेशन से आपको ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू आउट द मीडिया जाता है जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ प्रॉपर होती है। एजिटेशन से कोई प्रोडक्ट कहीं एक्यूमुलेट नहीं होता है, कहीं किसी चीज़ की या कोई भी प्रोडक्ट है नीचे या ऊपर कहीं भी इकट्ठा नहीं होता है। और उसके बाद एक्सेसिव एजिटेशन से गैस बन सकती है, बबल्स बन सकते हैं। माइक्रोबियल सेल ज़्यादा आप जोर से अगर इम्पेलर घूमता है तो माइक्रोबियल सेल डैमेज भी हो सकती हैं क्योंकि दे आर वेरी सॉफ्ट। सो आपको ध्यान रखना है कि एजिटेशन की या मिक्सिंग की स्पीड एडिक्वेट हो, जितनी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हो, और कहीं भी एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम ना आए और ओवर एजिटेशन से बैक्टीरियल सेल डैमेज ना हो। तो मिक्सिंग एंड एजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट इज फोम फॉर्मेशन, जो मैंने भी बताया कि प्रोटीनियस सब्सटेंस होगा अगर आपका रॉ मटेरियल प्रोटीन नेचर का होगा तो वहाँ पे जब आप एजिटेशन या इम्पेलर के थ्रू मिक्सिंग करते हो तो वहाँ पे बहुत सारा फोम क्रिएट होता है। तो उस फोम को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी फोमिंग एजेंट डालते हैं। जनरली एंटी फोमिंग एजेंट यार जनरली मिनरल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है। ऑयल को अगर आप फोम के साथ मिक्स करोगे तो फोम अपने आप डिस्ट्रॉय होता है। आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप कोई भी जो भी हम सर्फ एक्सेल वगैरह यूज़ करते हैं
अगर आप उसका फोम क्रिएट करो, उसमें ऑयल डालोगे, ऑयल डाल के आप उसको मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि फोम क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ऑयल इज अ यूज एज अ मेजर एंटी फोमिंग एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। और आपको इसका भी ध्यान रखना है कि जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं एज एंटी फोमिंग एजेंट, वो माइक्रोबियल सेल के साथ वेरी ना करे, या माइक्रोबियल सेल या जो भी आपका बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ वो इंटरफेयर ना करे। So these are the important factor that should be considered and that must be considered during the designing of fermenter. So the material you used, the pH of the fermentation, fermenting broth, the microbial strain you are using for the fermenter, temperature, dissolved oxygen, nutrient concentration आपने कितना लिया है, agitation कितना है, मिक्सिंग कितना फास्ट है या स्लो है, और फोम फॉर्मेशन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर शुड बी कंसिडर ड्यूरिंग द designing of fermenter or selection of the fermenter in any kind of fermentation or designing any kind of fermentation of the desired commercial product. It could be anything. So what we have to require: the sterile environment media, biomass concentration, assess of monitoring of pH ऑलरेडी डिस्कस, टेम्परेचर, डिजोल्व ऑक्सीजन, प्रेशर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सैम्पलिंग, प्रोविजन ऑफ द एडिशन ऑफ एंटी फॉर्मिंग एजेंट, एसिड बेस जो पीएच मेंटेन करती है, फ्रेश मीडियम, अगर ओपन सिस्टम फर्मेंटर आपने यूज़ किया तो आपको बीच बीच में फ्रेश मीडियम भी ऐड करना पड़ेगा। इफेक्टिव एजिटेशन, एरेशन चाहिए, प्रोडक्ट रिमूवल, प्रोडक्ट इनहिबिशन, मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल सी इन द नेक्स्ट lectures. Till now you have to consider the design of the fermenter and the factor affecting the design of the fermenter. Important question for 10 marks asked in every year. So keep in mind, if you have any doubt about the design of fermenter or any part of the fermenter which I have explained here, please let me know in the WhatsApp group. Okay, fine. I hope you got the point.